My dear student, today we will learn very important 20 MCQ of chapter number 3 current electricity, subject physics, standard 12. So let's start. Question number 1. The speed at which current travel in a conductor is nearly option A 3 into 10 to the raise 4 meter per second, option B 3 into 10 to the raise 6 meter per second, and option number 3 into 10 to the raise 8 meter per second, and option number D 3 into 10 to the raise 10 meter per second. Okay, give the correct answer within 5 seconds. The correct answers of question number 1 is option number A 3 into 10 to raise 4 meter per second square. This is the correct answer. Now question number next. Question number 2. The resistance of human body is about. The resistance of human body is about option number A 12 ohm, option number B 120 ohm, and option number C 12 kilo ohm, and option number D 120. ठीक है, ohm. Okay, so tell the correct answer. Correct answers of question number 2 is option number C 12 kilo ohm. Okay, so correct answers you can see. This is the correct answers of this. C is the correct answer. 12 kilo ohm is the answer of question number 2. Now next question number 3. The number of electrons that constitute 1 ampere of current is. ये तो सबको पता हो, everyone can give the answer. Okay, do fast within 5 seconds in comment box what is correct answer. तो ऑप्शन नंबर A is 6.25 10 to the raise 16, ऑप्शन नंबर B 6.25 into 10 to the raise 17, and 6.25 10 to the raise 18, and then last options D is the D 6.25 10 to the raise 19. Okay, so what is correct answers of question number 3? Do fast everyone. The correct answers of question number 3 is option number C 6.25 10 to raise 18 is the correct answer of question number 3. Okay, now question number next. Question number 4. How many different resistance are possible with 2 equal resistance? How many different resistance are possible with 2 equal resistance? के लिए हमें डिफरेंट हाउ मनी डिफरेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल हो सकते हैं जो 2 इक्वल रेजिस्टेंस के बराबर हों. ठीक है, तो गिव द करेक्ट आंसर. क्या होना चाहिए? डू फास्ट ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर. विच आंसर इज करेक्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4? गिव द आंसर फास्ट. तो this is the correct answer. Correct answer of option number B 3 resistance are correct answer. Okay, now question number next. Question number 5. Give the 3 equal resistors. How many different combinations can be made? You see here 3 resistors are given. 3 equal resistors are there. How many different combinations are there? तो हमें इसकी combinations को बताने हैं made of that. तो ऑप्शन नंबर A 3, ऑप्शन नंबर B 4, ऑप्शन नंबर C 5, एंड ऑप्शन नंबर D 6. तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th इज ऑप्शन B 4 रेजिस्टेंस. 4 combinations are there. How many combination? 4 combinations. So we can get the correct values. Okay, तो ऑप्शन नंबर B is the correct, 4 is the correct answers. Okay, now next question number 6th. The specific resistance of all the metal is mostly affected by. Option number A temperature, option number B pressure, option number C magnetic field, and option number D is volume. बोलिए कौन सा होना चाहिए?
जिसके लिए सभी मोस्टली ऑल मेटल इज रिस्पेक्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इन दिस वे यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस इज ऑप्शन नंबर ए, कॉपर वायर, ऑप्शन नंबर बी, फिलामेंट लैंप, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी, डायोड। तो आंसर क्या होना चाहिए? नॉन ओमिक कौन सा है? कॉपर वायर तो है नहीं, फिलामेंट भी नहीं है, कार्बन रजिस्टर भी नहीं, तो एक ही बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, डायोड इज द नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर डी, डायोड इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, the specific resistance of a rod of the copper as the compared to that of thin wire of the copper is option number A, less, option number B, more, option number C, same, and option number D, depend upon the length and area of cross section of the wire. Okay, tell the correct answer क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर C is the correct of question number 8, means same will be there. Okay, so correct answer is option number C, same. Now next question number 9, the length of conductor is half. Listen carefully. The length of conductor is half if the resistance will be क्या होगा? हाफ होगा, डबल होगा, अनचेंज्ड होगा या फिर क्वाड्रुपल्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होना चाहिए इसका? बोलिए, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर हाफ कर दी जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? यू नो वेरी वेल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है। आपने पढ़ा ही है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अगर हम एल की वैल्यू को बढ़ा दें, हाफ कर देंगे, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। इफ़ एल विज इंक्रीज तो आर विल इंक्रीज, एंड एल विज डिक्रीज तो हाफ होगा, तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन से करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर ए, हाफ ऑफ दिस रेजिस्टेंस विल बी हाफ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A of the answer of question number 9. Now question number 10. Simon is the unit of resistance, conductance, specific conductance, and is none of this. बोलिए, which is the correct answer? किसका है ये यूनिट? ओके, तो give the answer in comment box. Do fast everyone. Okay, तो correct answers of question number 10 is option number B, conductance is the correct answer of this question. Okay, now question number next, question number 11, how many electric energy is consumed by 100-watt lamp used for 6 hours every day for the 30 days? Okay, so here given that power given that and time given that, तो we want to find the energy means electric energy means we want to find the work done, जिसको हम कहते हैं W। तो you know, everyone know very well क्या कौन सा फार्मूला होता है? हमें पता है फार्मूला कौन सा है कि P इक्वल टू होता है W बाई T। तो W क्या होगा? W इक्वल टू P इंटू T। क्या लिखेंगे? P इंटू T। ओके, तो इन दिस वे इफ़ वी कैन मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 6 इंटू 30 180। तो अगर हमें पावर निकालना है तो W इक्वल टू हो जाएगा कितना? 100 इंटू दिस इज द P एंड T इज द 180, तो वी कैन गेट 18,000। ठीक है, वाट आर। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू 18,000। ठीक है, वाट आवर्स। तो अगर हम इसको लिखे था तो 18 किलो वाट आवर भी लिख सकते हैं,
तो यू कैन सी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी 18 किलोवाट आवर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर consequence of first conservation of energy, b the conservation of electrical charge and energy respectively, option number c conservation of electric charge, and d is the neither conservation of energy nor electric charge। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से बताइए। 12th का आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड एनर्जी रिस्पेक्टिवली मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिस्पेक्टिवली। एवरी स्टूडेंट प्लीज़ ट्राई टू डू। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए ये आपकी प्रैक्टिस पेपर ही है। यू शुड ट्राई कि व्हाट इज़ योर नॉलेज ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड लेटर ऑन आई एम गिविंग द आंसर। तो बिफोर हमारे आंसर देने से पहले आप सेलेक्ट करिए क्वेश्चन और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर भेजिए, ठीक है? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। ए 5 फ्यूज वायर कैन बी स्टैंड इन मैक्सिमम पावर इज 1 watt in the circuit, and then resistance of the fuse wire is means power is given that and current is given that we want to find the resistance। तो फार्मूला यू नो वेरी वेल कि P इक्वल टू, आपने आपको फार्मूला सभी को पता है, पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड वी वांट टू फाइंड द आर। तो अगर हमें निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन फाइंड द वैल्यूज, मतलब एम्पियर दिया गया है और ये वैल्यू दी गई है, तो हम लिख सकते हैं P बाई आई स्क्वायर, ठीक है? नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। पावर कितना दिया है? 1 watt है, तो अगर हमें निकालना है वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस, तो हम लिखेंगे P इक्वल टू आई आर। तो P की वैल्यू कितनी है? P इज़ 1 एंड यहाँ पे आई स्क्वायर मीन्स 25, मतलब 5 5 ज़ा 25, तो यू कैन राइट 0.04 25 4 ज़ा दिस। तो करेक्ट आंसर ऑफ रेजिस्टेंस इज दिस ऑप्शन नंबर डी। You can see the options, these are given that 0.04 ohm is the correct answer of question number 13। Now next question, question number 14। ये गैलोमीटर्स एक्टिंग एज ए वोल्टमीटर विल हैव बिल विथ इट्स कॉइल। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज हाई रेजिस्टेंस इज पैरेलल, एंड ऑप्शन नंबर बी द हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ऑप्शन नंबर सी ए लो रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल, एंड ऑप्शन नंबर डी ए लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है क्या होना चाहिए? व्हाट इज़ करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14? तो करेक्ट आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर बी ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस जो है सीरीज में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी है, ये हाई रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। When 3 identical bulbs of 60 watt and 2 volt 200 volt rating in the connected in series 200 volt supply, तो power drawn them will be। तो इसको क्या करना है? बी नो वेरी वेल कि बी नो द फार्मूला। P इक्वल टू क्या होता है? यू नो वेरी वेल P इक्वल टू होता है वी आई, ये यू नो वेरी वेल, एंड यू नो P1 P2 एंड P3 ऑल ऑफ 60 वाट हियर मेंशन दैट। तो हमें ये भी फार्मूला पता है कि P इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर भी होता है। तो बेसिस ऑफ दिस इफ़ वी कैन फाइंड द आर, तो हम क्या लिख सकते हैं? आर को इधर लेंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू आर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर बाई आर और P। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए इसकी B की वैल्यू कितनी है? B है 200, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 200। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा, आप देखेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे
तो आर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर मतलब कितना होगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई कितना है इसकी वैल्यूज़, ये हो गया वैल्यूज़ कितनी है 200 और पी की वैल्यू कितनी मेंशन की गई है, पी इक्वल टू है you can see here it's a P equal to 60 watt. Okay, so if you substitute these values easily you can get the values. Okay, now you can write the 60 here, तो ये से 0 कट गया एंड यहाँ पे 10 होगा और ये हो जाएगा 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 2000 बाई 3 इज द रेजिस्टेंस। ये तो रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हाउ मनी रेजिस्टेंस आर देयर, वी हैव ये 3 रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे 3 रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस वी वांट टू फाइंड, अगर हमने रेजिस्टेंस निकालना है तो सबको ऐड कर दो 2000 प्लस 3 इंटू 2000 प्लस 3 इंटू 2000 प्लस 3, तो ये रिजल्ट आएगा 6000 अपॉन 3 और हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा 2000। ओके, तो अभी तो हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाले, कितना आर की वैल्यूज वी हैव गॉट, वैल्यू ऑफ आर हमें मिल गया है, आर इक्वल टू कितना हो गया 2000 ओम। ठीक है, बट वी वांट टू फाइंड द पावर। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, उससे पहले हमें क्या निकालना होगा, करंट निकालना होगा। वी नो वी इक्वल टू आई आर, तो आई क्या होगा आई इक्वल टू बी बाई आर। तो बी की वैल्यूज गिवन दैट है, कितनी है, कितनी वैल्यू है, वी वांट टू फाइंड द आई। तो आई में क्या है बी बाई आर है और बी है 200 और रेजिस्टेंस हमारा है 2000, तो 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 10 जा 2, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 10 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.1 एम्पियर। तो कहने का मतलब जो हमारा करंट आया आई की वैल्यूज़ कितनी आ गई 0.1 एम्पियर, जबकि रेजिस्टेंस कितना आया था 2000। ठीक है, अब हमें बताना है, वी वांट टू फाइंड द पावर। ठीक है, तो पावर निकालना है तो क्या होगा, पावर का फार्मूला लगा दीजिए, बी स्क्वायर बाई आर होता है। अब इसकी वैल्यूज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इंटू आर। तो हमें आई की वैल्यू भी हमारे पास है और आर की वैल्यू पास, तो क्या लिख सकते हैं, आई की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू होल स्क्वायर इंटू आर है 2000, कितना आया था, इतना था। अब इसमें डेसिमल कितना आएगा 0.01 इंटू 2000, रेजिस्टेंस था तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 20 वाट आएगा। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द पावर। कितना आ गया पावर, आपके पास ऑप्शंस ए है 20 वाट। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये तो इजी है। एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ द आर ओम एंड द कनेक्टिंग इन पैरेलल गिवन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर, तो इट विल बी रेजिस्टेंस वेयर द कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। द कम्बिनेशन वुड हैव टू रेजिस्टेंस ओम इज इक्वल टू कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आपके पास सामने है, एन स्क्वायर आर है, आर बाई एन स्क्वायर है, आर बाई एन है, एन आर है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, डू फास्ट। तो दिस इज द आफ्टर सोल्यूशन यू विल गेट द option number A is the correct answer of question number 16, n square r is the correct answer. Okay, now next question, question number 17, why is the Wheatstone bridge more accurate than other method of the measuring resistance। ठीक है, हमें रीज़न बताना है कि क्यों जो है Wheatstone bridge more accurate than the method of measuring the resistance। तो वो ऑप्शन नंबर ए है इट इज़ नल मेथड, इट इज़ ए नल मेथड। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ द बेस्ड ऑन द किरचॉफ्स लॉ, इट हैज़ द 4 रेजिस्टेंस एंड डी इज द इट डज नॉट इन्वॉल्व ओम्स लॉ। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ओके, जिसमें लिखा गया इट इज़ ए नल मेथड पे डिपेंड करता है। ओके, वेरी गुड।
And then now question number 18. A potential difference is the 10 volt is applied across the conductance of 2 seconds. The current in the conductor will be, हमें करंट we want to find the current. ओके, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए 18 का. डू फास्ट, बोलिए क्या होगा, करंट का फार्मूला क्या है. पोटेंशियल दिया गया है एंड देन कंडक्टेंस इज दी गिवन दैट 2. तो आंसर क्या है, बोलो जल्दी से. 20 एम्पियर है, बी ऑप्शन से 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी है 0.2 एम्पियर एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस. तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 is option number A, 20 ampere. Okay, too far to, if you calculate you can get this values. Okay, now next question, question number 19. Ohm's law is valid when the temperature of conductor is very low, very high, varying and constant. क्या होगा, ये तो सभी को पता होगा. Ohm's law is valid when temperature of the conductor is, क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी is the correct answer. कांस्टेंट शुड बी, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ओम का लॉ वैलिड होता है या वैलिड होता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट. ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 3. तो लास्ट क्वेश्चन मीन्स 20 क्वेश्चन. द फेनोमेना ऑफ द सुपर कंडक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर ओम्स and option number C addition and option number D is none of these. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी ओम्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय ओम्स. तो यहाँ पे टिक मार्क एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. इन दिस वे one time more you check your knowledge and you try to give the correct answers and gain your knowledge. Okay, and one time you will try yourself after completing the all 20 questions. So one time more you will revise and then you can understand. Okay, thank you.